Good morning class. Welcome to class 10th science. In last video we discussed about conventional sources of energy. In this video we will discuss about non-conventional sources of energy. So by non-conventional we mean something which we have used as an improvement. These are not ancient technologies. We are not using these energies for a long time. Means when we had an energy crisis we shifted to certain new ideas, and all those new ideas are renewable. The fuel can be used more than one time, so that's why we call them non-conventional sources of energy. The first of all is solar energy. As we all know that we can derive energy from sun. The energy which is being given by sun, we can use that energy. For years and years we are getting sunlight which was being wasted, but now we have idea that we can use that energy. So what we can do using the solar energy, this energy can be converted into heat. Means the heat energy which is being derived from the sun can be used. The solar energy can convert into chemical energy and into electrical energy. So keeping this in mind, we have made certain things which works on this, like solar cooker. It works on the solar heat. It can prepare food using the solar heat, but again the disadvantages are always there. This is the solar furnace जिसको हम भट्टी बोलते हैं. It is a concave, just a minute. It is a concave mirror, right? So what happens in the case of concave mirror? We have not discussed the ray diagram yet, but I can tell you one thing. What is the role of concave mirror? Like when rays come from the infinity, it directs, it converges them to one point. Means सारी फैली हुई जो रेज आएंगी ये उन सारी रेज को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है कॉन्केव मिरर. So that's why we create this concave mirror, so that when sunlight falls on it, it converges them to, it concentrate them to one point, and the heat magnified, heat intensity get more magnified and it get more intense. So whatever they have to burn, it can be easily done with the help of sunlight only. We do not need any further fuel. These are the solar panels. Solar cells are there which converts solar energy into chemical energy. Solar energy limitations are, it cannot be generated all the time because we need sunlight. It cannot be built everywhere. It depends the sunlight, the duration of sunlight. If the duration of sunlight is good, then it can be built there. And solar panels are a little bit expensive as it uses silver fragments. The next we have energy from sea. Means as we all know that there are 70% of water on the earth in the form of sea, in the form of oceans, etc. Fine. So what happens? There are waves, there are tides, there is a heat which is there on the sea. So this can be used. Later on we got to know that these things can be used. So first we are discussing the tidal energy. Tidal energy is based on the tides. इसको हिंदी में हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं. इंग्लिश में इट इज लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स. मीन्स जो सी होता है, जो ओशियन होता है, उस पर बिकॉज ऑफ द पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस पर इस तरीके से टाइड्स आते हैं. मीन्स वाटर इतना ऊपर उछलता है, फिर वो नीचे लो टाइड पे जाता है, फिर ऊपर जाता है और फिर लो टाइड पे नीचे आता है. तो जब वो इस तरीके से लो टाइड्स और हाई टाइड्स पे मूव करता है, फाइन, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स पे मूव करता है, सो यही एनर्जी यूज की जाती है बाय इंस्टॉलिंग दीज टर्बाइंस इनसाइड द सी. इसको पानी के अंदर इन सारे टर्बाइंस को इंस्टॉल कर दिया जाता है, और जब वो एनर्जी के साथ लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आती हैं, तो वो जो सारी एनर्जी क्रिएट्स करके, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी हेल्प से दीज टर्बाइंस स्टार्ट्स रोटेटिंग. उसके बाद ये सारी टर्बाइंस जो हैं वो एक मेन पावर से अटैच्ड हैं विच फर्दर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. So advantages are again there.
dam is built, tidal power is cheap, and it can produce a good amount of energy, but maintenance is little bit difficult, and जो डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और जहाँ पे इसको लगाया जाए, मीन्स टाइडल पावर को हम वहीं लगा सकते हैं जहाँ पर टाइड्स बहुत अच्छे आते हैं, मीन्स अच्छे हाई टाइड रेंज आती है। नेक्स्ट वी हैव वेव एनर्जी। जैसे हमें पता है सी में वेव्स तो हमेशा ही आती रहती हैं, अच्छी वाली वेव्स आती रहती है। इट्स नॉट लाइक कि हर जगह जो हल्की फुल्की वेव्स पे भी हम इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम इन टरबाइंस को इंस्टॉल कर देते हैं सी में। ये दिख रहा है। तो जब वेव्स आती हैं, बहुत हाई स्पीड में जो वेव्स आती हैं, तो वो वेव्स इन टरबाइंस को रोटेट करवा देती हैं। तो जब ये हाई स्पीड वेव्स इनको रोटेट कराती हैं तो इनकी हेल्प से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसके भी एडवांटेजेस हैं। दिस इज़ रीन्यूएबल, इको फ्रेंडली, easily predictable, way to harness, abundant and widely available. But again the problem comes that to certain location, means we need to find the location where wave is quite good, then only it is then only it is economical and profitable. Third we have ocean thermal. Ocean thermal means heat from the ocean. As you all know, ये वाटर सरफेस है, ओशियन में वाटर सरफेस होता है। सनलाइट की वजह से अपर सरफेस जो है ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, लेकिन जो लोअर सरफेस होता है वो हमारा कोल्ड होता है। हॉट सरफेस, अपर सरफेस इज़ हॉट एंड लोअर सरफेस इज़ कोल्ड। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम इसमें इम्प्लांट कर दिया, जिसमें क्या करते हैं, एक इवेपोरेटर चैम्बर होता है जिसके अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड। नाउ व्हाट इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मीन्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बहुत कम टेम्परेचर पे भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। सो दोज लिक्विड विच कैन टर्न इनटू वेपर मीन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत लो होता है, उनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, राइट। तो क्या होता है, यहाँ पे हम अमोनिया लिक्विड, यहाँ पे अमोनिया डाला जाता है इस चैम्बर में, इवेपोरेटर चैम्बर में, और उसके बाद जो हॉट वाटर है, जो वाटर हॉट है, उसकी हेल्प से इस अमोनिया को इवेपोरेट किया जाता है। बहुत सारा अमोनिया बहुत ज़्यादा पानी से इवेपोरेट किया जाता है, और इतना ज़्यादा इवेपोरेशन वेपर्स फॉर्म होती हैं कि वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो ये जो टरबाइन है इसको रोटेट करने में हेल्प करती हैं। और जब ये टरबाइन रोटेट होती है तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट इसके साथ इसका एक और अच्छा चीज़ है कि ये जो अमोनिया यहाँ से वेपर फॉर्म में गया, ये सारी वेपर फॉर्म्स अब वापस यहाँ कंडेंसर में डालकर इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो जब ये इस फॉर्म में ठंडा हो जाएगा तो वापस इसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगेन इसको इवेपोरेटर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे, अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट आती है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। कोई भी चीज़ पे डाउट है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं क्लियर हो रही है, सो यू कैन वॉच इट अगेन, फाइन। एक बार फिर बता देती हूँ। इवेपोरेटर में अमोनिया डाला, वेपर फॉर्म से ये रोटेट होंगी, वापस कंडेंसर में ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी अमोनिया, और इसे फिर से इवेपोरेटर में डालकर सेम साइकिल दोबारा चलाई जाएगी, फाइन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट्स नॉट दैट एफिशिएंट और एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। और इसमें थोड़ा सा एक्वेटिक लाइफ को, क्योंकि हम ये पूरा प्लांट जो है वो वाटर में लगा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम दी अर्थ, हीट एनर्जी फ्रॉम दी अर्थ। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है फ्रॉम अर्थ, ये इसके लिए इस तरीके से ये जो हॉट वाटर है और जो स्टीम है, इस स्टीम की हेल्प से इसके लिए पूरे वेल्स बनाए जाते हैं, जहाँ से ये हॉट वाटर, एक्चुअली होता क्या है, वॉल्केनोज के आसपास, कुछ जगह के आसपास वाटर जो होता है बहुत हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर हीटअप हो जाता है और वो बाहर स्टीम की फॉर्म में आने लग जाता है।
इन्हीं के वेल्स बनाकर इस स्टीम को यूज़ कर लिया जाता है किस चीज़ के लिए, सो दैट इट कैन रोटेट द टरबाइन। एज यू ऑल कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो वेल जा रहा है ये स्टीम बहुत प्रेशर से आती है और ये इनको रोटेट करती है, और जब ये रोटेट होते हैं तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद वापस इसी स्टीम को इसी चैम्बर के थ्रू, इंजेक्शन वेल के थ्रू हम इसे वापस डाल दिया, सो दैट अंडरग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो मेंटेन रहे। सो अगेन पम्प्स कैन स्टोर हीट फॉर लेटर यूज़। इसके फ़ायदे हैं कि हम इसको लो कॉस्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स नहीं है, बट कुछ प्लांट्स की वजह से वाटर पोल्यूशन होना पॉसिबल होता है। दिस इज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ऑल्दो इट इज़ नॉट मच इन योर सिलेबस। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, द ओनली थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर एनर्जी दो न्यूक्लियस को मिलाकर या फिर एक न्यूक्लियस को दो में तोड़कर, इन दोनों ही केसेस में हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और वही एनर्जी फिर इस प्लांट में यूज़ की जाती है। जब हम दो न्यूक्लियस को मिलाते हैं तब हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, और जब हम एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस पे तोड़ते हैं तब हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इन बोथ द केसेस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस इज वेरी हाई इन अमाउंट। न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो न्यूक्लियर पावर है, मींस न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो उस वेस्ट को डिस्पोज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बिग टास्क, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर इसकी रेडिएशन बाहर निकल गई तो इट कैन हार्म generations. With this, I would like to end this video. I hope everything is clear to you. If you have any doubt, you can ask me or you can watch the video again.